Okay, so hello everyone. Uh, Let us learn about uh, searching algorithms. So we'll start from searching algorithm. We'll see how searching algorithm होता क्या है. Okay. So primary focus is understanding searching algorithm क्या होता है और so basically we'll learn today about linear search. So there are two type of searching algorithm: linear search or binary search. To binary search we will learn in the next video. In this video, we'll learn about linear search and also what is searching algorithm. Okay, so in a very simple term, I can say is that suppose you this is our say algorithm. So this is like a black box, or you can say not black box exactly. You can say it is a our like some box where there is some algorithm, and you just put some inputs here. Okay, and you get some output here. Okay, ठीक है. So you put some value in the input box and then you get some output under certain algorithm. Okay, so what happens is I'll explain you in searching algorithm कि होता क्या है. Okay, so suppose your input is list of elements. Okay, list of elements, and what we need is in some element we need to search element X. Okay, now what this searching algorithm will do, if we are able to get it, like if a is present, or let me say if x is present, अगर x जो है x is present in a, present in list, then it will return index, return index, index of the list. Okay, else it will say error. Okay, so simply list of elements. If you input a list of elements and एक element x जो आप find out करना चाहते हैं under this box which is our searching algorithm, then in the output you what you can get is you can get if x is present, then you can get the index where that is present, you can get it. If it is not present, you will get an error. Okay, now very simple term, this is what a searching algorithm will do. और यही वेरी इन द वेरी लेमन टर्म यही सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है with a diagram. Yeah, so yeah, and there are types of searching. There are two types of searching algorithm. एक तो होता है linear search और एक तो होता है binary search. So today we will be focusing on linear search. In the next video, we'll do the binary search, which is also very easy and not at all difficult. You will learn very. I'll explain in a very simple term. So let me explain you what exactly कि linear search होता क्या है. Okay, चलो. Okay, let me bring it out. Okay, okay. So we have linear search. Okay, I've written a pseudocode algorithm and I've written something like this. Okay, so anyone who is not able to understand it, I'll explain you in a bit. Gypsy. Okay, so मान लो कि एक linear search करके कुछ we have given a function, and we have this array and the element we want to find. मान लो हमें x find out करना है. ठीक है, तो ये क्या है, underlying algorithm. Okay, just a second. So let me make it clear. This is our list of elements. List of elements. Okay, and this is our element we need to find out. Element we need to find out. We need to make second. Okay, element we need to find कि ये कहाँ है. ठीक है, तो we will give in the input, and this as our inputs. Now this algorithm. So this is our black box. So this whole thing is a not black box. This is our box. Okay, this whole thing. Okay. Now इसमें कुछ तो ऐसा होगा जिससे we will get where that exactly वो index कहाँ है जहाँ हमारा वो
एलिमेंट होगा. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. In a very layman term, I will explain you. Suppose I take a list of element, or say of element, array of element. Okay, तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो कि एक 5 साइज का मैंने अरे लिया. इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद अरे, के कोप ऑफ अज्यूम कि अरे एक लिस्ट होता है. ठीक है, तो मान लो इसमें मैंने 0, 5, 3, 9, 10, ऐसा कुछ तो 1, 2, 3, 4, 5. ओके, ठीक है. इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4. ठीक है, तो मान लो हमें 9 ढूंढना है. तो हम कैसे मैन्युअली, हम कैसे, अगर मान लो कि तुमको ऐसा दे दिया, ओके, कि यहाँ ये ले लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट और इसमें से बता कि 9 कहाँ है. तो उसको कैसे बताओगे कि 9 कहाँ है, ये कहाँ है. तो उसके लिए क्या करोगे, आप देखोगे पहला इंडेक्स पे, क्या ये 9 है, नहीं ये 9 नहीं है. क्या ये 9 है, नहीं ये 9 नहीं है. क्या इधर 9 है, इधर भी 9 नहीं है. क्या इधर 9 है, हाँ इधर 9 है. इधर 9 है तो हम क्या करेंगे कि हम रिटर्न कर देंगे कि, क्या रिटर्न करेंगे, 9. नहीं, 9 नहीं रिटर्न करना. ओके, हमें क्या रिटर्न करना है कि इंडेक्स कहाँ है, वो 9. ओके, इंडेक्स, तो हमें रिटर्न करना है कि 3, मतलब इंडेक्स नंबर 3 पे ये प्रेजेंट है, ये हमको रिटर्न करना है. तो इसको एज अ कोडिंग आप कैसे देखोगे और इसको कैसे समझोगे, वो मैं समझाता हूँ. ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. ठीक है, लेट मी गो डीप डाइव इनटू इट. सो हम क्या करेंगे, वी विल इनिशियलाइज अ फॉर लूप. ठीक है, जिसमें, हाँ ध्यान से देखना, इधर इधर मैंने n-1 लिखा है. ठीक है, मतलब i = 0 से n-1 लिखा है. ध्यान देना, ये जीरो इंडेक्सिंग है. ठीक है, और प्लस प्लस आई ऑब्वियसली इंक्रीमेंट करेंगे. अच्छा, चेक क्या करना है, बस सिंपल है. चेक क्या करना है, अगर x जो है a ऑफ i के बराबर है, मतलब जो इंडेक्स, ओके, तो ये रिटर्न करेगा i. तो a ऑफ, जब x जो होगा ना, वो a ऑफ i के इक्वल होगा, तभी ये रिटर्न करेगा. अगर मान लो ये पूरा फॉर लूप चल गया, ठीक है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से अगर पूरा फॉर लूप चल गया यहाँ तक, लेकिन x मिला नहीं, तो अल्टीमेटली ये -1 रिटर्न कर देगा. ठीक है, -1 रिटर्न कर देगा. ठीक है, और आउटपुट को कैसे देखेंगे, मान लो जो भी आया, अगर वो इफ, ठीक है, एक सेकेंड, अगर इफ एक जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा, अगर वो -1 के बराबर नहीं है, तब तो सी आउट कर देना, या फिर आउट कर देना, आउटपुट में लिख देना कि जो भी इंडेक्स आया. ठीक है, बस यही हमारा लीनियर सर्च है. तो ये जो है ना, ये एक इटरेटिव अप्रोच है. ये जो हमने देखा ना, इटरेटिव, एक एक करके इटरेशन किया, तो इसको इटरेटिव अप्रोच भी बोलते हैं. अच्छा, एक और चीज, ये सॉर्टेड अरे पे भी चलेगा. ठीक है, मतलब एलिमेंट सॉर्टेड हो तो भी चलेगा, अनसॉर्टेड हो तो भी चलेगा, दोनों पे चलेगा. ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, छोटे पॉइंट्स है, नॉट नेसेसरी बट पता होने चाहिए. कोई पूछ ले कि भाई अनसॉर्टेड अरे पे क्या चलेगा, सॉर्टेड अरे पे क्या चलेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च में सॉर्टेड अरे पे चलता है, और लीनियर सर्च पे अनसॉर्टेड पे भी चलेगा. ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाइनरी सर्च में. फिलहाल अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं. तो मान लो बेस्ट केस क्या होता है. ठीक है, हाँ, बेस्ट केस क्या होता है, मतलब जैसे कि मान लो कि गए और तुरंत ही सबसे पहला एलिमेंट ही मिल गया, मतलब पहले में ही मिल गया, θ(1) हो जाएगा तब वो, मतलब गए और तुरंत ही मिल गया. ठीक है, वर्स्ट केस क्या होगा, मतलब गए, पूरा सर्च किया, लास्ट एलिमेंट -1 एलिमेंट जो है
वो हमारा होगा, हाँ, जो एक्स हमें चाहिए। तो वो मतलब टोटली एन, मतलब एन लूप्स लगाएगा, मतलब टोटली एन स्टेप्स लेगा वो। तो वर्स्ट केस हमारा थीटा ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि वो थीटा ऑफ एन नहीं, कहीं बीच में है, तो एन बाई टू विच इज ऑलमोस्ट थीटा ऑफ एन बोल के हम निकल सकते हैं एसिम्प्टोटिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है तो ये थीटा ऑफ एन जो है ये अरे का स्पेस है, ठीक है। और ये थीटा ऑफ वन जो है वो कंप्यूटेशन का है, ठीक है। तो टोटली थीटा ऑफ एन स्पेस हो यूज हो रहा है। ओके, चलो, आई थिंक, आई होप दिस इज क्लियर, होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकर्सिव एल्गोरिथम, क्योंकि जो भी लीनियर सर्च करता है उसका एक रिकर्सिव पार्ट भी होता है, मतलब जितने भी एल्गोरिथम पढ़ोगे हर एल्गोरिथम का एक रिकर्सिव पार्ट भी करो। इससे एल्गोरिथम स्ट्रांग होता है और समझ में आता है कि होता क्या है। तो मान लो कि एक हमने फंक्शन लिखा, लीनियर रिकर्सिव सर्च, हमने अरे पास किया। ओके, तो यहाँ मैं बता देता हूँ, ये जो है ये अरे है, एन जो है वो साइज ऑफ द अरे है, ठीक है। ओके, और जो आई है वो हमारा करंट पोजीशन है, ओके। और जो एक्स जो है वो हमें एलिमेंट फाउंड है, ढूंढना है, फाउंड। ओके, सिंपल। तो एक बार फिर से, ये अरे है, ये साइज ऑफ द अरे है, ये हो गया हमारा करंट पोजीशन, ये हो गया एक्स, ठीक है, जो ढूंढना है। अब मान लो कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। वेरी सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो कि ये एक अरे है, ठीक है। लेट मी राइट इट इन स्मॉल लेटर्स। अरे ये है 257931 2 ठीक है। मान लो कि हमें ढूंढना है, ये अरे हमने इनपुट में दे दिया, साइज दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइज दे दिया, ठीक है। ये दे दिया 8 साइज दे दिया, करंट पोजीशन 0 दे दिया, और एक्स का वैल्यू मान लो हमें 1 ढूंढना है, ठीक है। क्या होगा कि मान लो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा ना, पहले ए जाएगा, ए ऑफ 0 पे चेक करेगा क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है। तो क्या होगा, रिटर्न करेगा ए 8 1 1, ठीक है। फिर से जाएगा, फिर से चेक करेगा क्या ए ऑफ 1 पे ये 1 के बराबर है, नहीं है। तो फिर से रिटर्न करेगा ए ऑफ 8 1 2 1, ठीक है। ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये है ना करंट इंडेक्स है, ये इंक्रीमेंट होगा, याद रखने वाली बात ये है, इंक्रीमेंट होगा, बस। ये बार बार इंक्रीमेंट होगा जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, कहाँ, मान लोगे 1 2 3 4 5 6, जब तक ये ऑफ 6 नहीं पहुंचेगा, ये ऑफ 6 पहुंचेगा, ये 1 के बराबर है, हाँ है। इसका रिटर्न करेगा आई, आई क्या है, 6, तो 6 रिटर्न कर देगा, ठीक है। आप इसको अल्गोरिथमिकली देखते और समझते कि होता हो क्या रहा है। तो हियर वी हैव, अगर ए ऑफ आई एक्स के बराबर है तो आई रिटर्न कर दो। अगर एल्स इफ, अच्छा एज कंडीशन है, अगर आई जो है वो इनके बराबर हो गया, इसका मतलब एलिमेंट मिला ही नहीं है, ठीक है। पिछले वाले में पिछले वाले में वो ऑटोमेटिकली फॉर लूप की वजह से हैंडल हो जाता था, ठीक है। बट यहाँ रिकर्सिव में हमें खुद को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न -1 करो, और नहीं तो, अगर नहीं मिल रहा है तो लीनियर रिकर्सिव सर्च ए ऑफ एन i+1 x, ठीक है, i+1 x, इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। वेरी सिंपल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलो, लेट अस अंडरस्टैंड रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन जो टी ऑफ एन जो होगा ना, वो इसका नेक्स्ट टर्म पे डिपेंड करेगा। सो टी ऑफ n-1, लेट मी राइट इट इन अ बेटर ब्लैक पेन, ओके। जो टी ऑफ एन जो होगा ना,
वो टी ऑफ एन मतलब नेक्स्ट वाले टर्म पे डिपेंड करेगा। और एक कांस्टेंट तो हमेशा रिलेशन में रहता ही है, रिकरेंस रिलेशन है। अच्छा, एनालाइज करते हैं बेस्ट केस में। बेस्ट केस में क्या होगा कि टी ऑफ एन गए, पहला एलिमेंट चेक किया वही मिल गया, मतलब टी ऑफ वन। बेसिकली ये थीटा ऑफ वन के जैसे है। ठीक है। वर्स्ट केस में टी ऑफ एन माइनस वन, या बोल सकते हो टी ऑफ एन माइनस वन तक गए और चेक किया, इसका मतलब ये बेसिकली थीटा ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल। एवरेज केस में क्या होगा, सेम टी टी ऑफ एन माइनस टू हो जाएगा, मान लो दो इटरेशंस के बाद मेरा, या एन माइनस टू इटरेशंस के बाद, या ऐसे। तो इसको इसको भी बोल के समवॉट एसिम्प्टोटिकली थीटा ऑफ एन के बराबर है, बस। इसको आप कॉपी कर लो, वेरी बेसिक, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो, आई होप यू गेट इट। Soon I'll bring binary search, जो और भी interesting होगा। In the next session or video, we will see how binary search is all about. Okay. Till then, you can copy all this if you want. या एक screenshot ले लो, simple, याद रहेगा। Done.